السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ عین بقرعید کے موقع پر بھوپال میں 10 دنوں کا سخت لاک ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے۔ یہاں مہلک وبا کے معاملات میں مسلسل اضافے کی وجہ سے بھوپال میں 25 جولائی کی صبح سے 10 دنوں تک مکمل لاک ڈاؤن کرنے کا وزیر داخلہ ڈاکٹر نروتم مشرا نے اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 23 اور 24 جولائی کو لوگوں کو سہولت دی گئی ہے کہ وہ مہلک وبا سے متعلق اقدامات کا خیال رکھ کر ضروری اشیاء خرید لیں۔ اس کے بعد ہنگامی خدمات کو چھوڑ کر کسی میں رعایت نہیں دی جائے گی۔ 24 جولائی کی رات یعنی 25 جولائی کی صبح سے لاک ڈاؤن 3 اگست کی رات تک جاری رہے گا۔ ڈاکٹر مشرا نے کہا کہ 10 دنوں تک بھوپال کے شہر کی سرحدیں سیل رہیں گی، بازار مکمل طور پر بند رہیں گے۔ بابری مسجد شہادت کیس میں بی جے پی کے معمر ترین لیڈروں میں سے ایک مرلی منوہر جوشی کی پیشی ہوئی ہے۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش ہوتے ہوئے عدالت سے کہا کہ وہ اس معاملے میں قصوروار نہیں ہے کیونکہ ان کا مسجد کی شہادت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جوشی نے اپنے آپ کو بے قصور قرار دیا اور کہا کہ انہیں سیاسی سازش کے تحت اس وقت کی کانگریس حکومت نے پھنسایا تھا۔ انہوں نے خصوصی عدالت کے جج ایس کے یادو کے سامنے پیش ہوتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں ان کا کوئی رول کبھی نہیں رہا، لیکن انہیں راحت بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ مرلی منوہر جوشی نے استغاثہ کی جانب سے پیش کیے گئے تمام ثبوتوں کو بھی جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ تمام ثبوت کانگریس کی سازش ہے تاکہ انہیں اس معاملے میں قصوروار قرار دیا جا سکے۔ مہاراشٹر حکومت میں سب سے بڑی پارٹی شیو سینا نے مرکزی حکومت پر طنز کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ اس نے اب تک بابری مسجد کے انہدام سے متعلق مقدمات کیوں ختم نہیں کیے۔ پارٹی کے ترجمان اخبار سامنا، جس کے مدیر رکن پارلیمنٹ سنجے راوت ہیں، انہوں نے اپنے اداریے میں مرکز کی مودی حکومت سے یہ سوال کیا ہے کہ رام مندر کے بھومی پوجن کے لیے وزیر اعظم مودی اور دیگر وی آئی پی لیڈران شرکت کریں گے، لیکن ایل کے اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی جیسے لیڈران کے خلاف اب بھی بابری مسجد انہدام کا کیس جاری ہے، جس میں ان دونوں معمر لیڈران کو پیش ہونا پڑ رہا ہے۔ سامنا میں شیو سینا نے مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی حکومت کو بھومی پوجن سے قبل یہ کیس ختم کروانے چاہیے کیونکہ ان لیڈروں نے کار سیوا کی تھی اور شیو سینا کا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ ملک میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے درمیان ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہے اور بھومی پوجن کی تاریخ 5 اگست مقرر کی گئی ہے، لیکن اس پر کافی اختلافات بھی ہیں جو کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ بھومی پوجن میں وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کچھ اہم شخصیتیں شامل ہونے والی ہیں، لیکن اس سے پہلے شنکراچاریہ سوروپانند سرسوتی نے ناراضگی ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے بھومی پوجن کی تاریخ پر ہی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس تاریخ میں رام مندر کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے وہ گھڑی مناسب نہیں ہے، اشبھ ہے۔ مدھیہ پردیش اسمبلی کے پروٹم اسپیکر رامیشور شرما نے یہ مضائقہ خیز منطق پیش کی ہے کہ ملک میں رام مندر کی تعمیر شروع ہوتے ہی کورونا ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے نیوز ایجنسی ANI سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر شروع ہوگی ویسے ہی ملک سے اور پوری دنیا سے کورونا وبا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے کوئی سائنسی وجہ پیش نہیں کی، لیکن یہ دعویٰ ضرور کیا کہ رام مندر کی تعمیر ہی کورونا کا مسائل کا حل ہے۔ ہندوستان میں بینکوں کی تباہی اور بربادی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تازہ ترین رپورٹ آئی ہے کہ ملک کے 18 سرکاری بینکوں میں 1.5 لاکھ کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کی گئی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان بینکوں کو چونا لگایا گیا ہے۔ ان 18 بینکوں میں سب سے زیادہ نقصان اسٹیٹ بینک آف انڈیا یعنی SBI کو ہوا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا معاملہ سامنے آیا ہے لیکن اس اہم ترین مسئلے پر ہر طرف خاموشی ہے۔ علاوہ حق اطلاعات قانون کے تحت حاصل کی گئی رپورٹ میں ریزرو بینک آف انڈیا نے اس کی تصدیق کی ہے اور جن سرکاری بینکوں کو چونا لگایا گیا یا ٹھگا گیا ہے ان کی فہرست جاری کی ہے۔ سابقہ مالی سال میں سب سے زیادہ SBI کو چونا لگایا گیا ہے۔ SBI کے ذریعے اس دوران 24,612 یعنی 93 کروڑ روپے کی بدعنوانی کی گئی، جس کے خلاف کل 6,964 معاملے درج کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ رقم سابقہ مالی سال کے دوران 18 سرکاری بینکوں میں ہوئی ہے۔ دہلی کے نظام الدین مرکز معاملے میں ویزے کی خلاف ورزی کرنے کے مقدمات کا سامنا کر رہے 400 غیر ملکی تبلیغی جماعتیوں کو عدالت نے ملک واپس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ان سبھی تبلیغی جماعت کے اراکین نے اپنی سزا مکمل کر لی ہے اور نظام الدین مرکز معاملے کے تعلق سے ساکت عدالت نے ہدایت دی ہے کہ سبھی کے پاسپورٹ واپس کیے جائیں۔ عدالت نے کرائم برانچ اور کیس کے IO سے بھی غیر ملکی جماعتیوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کورونا وائرس کے بحران کے درمیان پہلا پلازما بینک ملک کے دارالحکومت دہلی میں شروع کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود دہلی میں پلازما کا کالا بازاری منظر عام پر آ گیا ہے۔ اس کا انکشاف انڈیا ٹوڈے کی ایک خصوصی رپورٹ میں ہوا ہے۔ اب دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اس رپورٹ کی بنیاد پر تحقیقات کا یقین دلایا ہے۔ جب انڈیا ٹوڈے نے کالا بازاری کا انکشاف کیا تو سب حیران رہ گئے۔ اس پر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا، ہم اس معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ جب پلازما بینک میں پلازمے کے 500 یونٹ ہوتے ہیں تو پھر لوگ اسے اس طرح کے بلیک میں کیوں خرید رہے ہیں؟
मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो ऐसा ना करें। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ये मुहावरा दिहाइयों से चला आ रहा है, जिसे दिल्ली के एम्स में ड्यूटी कर रहे मोहम्मद फवाज ने हकीकत में बदलकर मिसाल पेश की है। कोरोना वायरस के दौरान डॉक्टर फवाज ने मरीज की जान बचाने के लिए ऑपरेशन करने से पहले खुद अपना खून अतिया कर इंसानियत को फरोग दिया है। डॉक्टर फवाज के इस जज्बे की सोशल मीडिया साइट्स पर जमकर तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि डॉक्टर फवाज जैसे डॉक्टर ही भगवान का रूप होते हैं। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता रोज एम्स के सर्जरी डिपार्टमेंट में 21 साल मरीज को दाखिल किया गया। वो एक पैर में इन्फेक्शन के सबब सिप्टिक सदमे में मुब्तला था, जिसको फौरन खून की ज़रूरत थी, जिसको देखते हुए डॉक्टर मोहम्मद फवाज आगे आए और उन्होंने अपना खून अतिया कर मरीज की जान बचाई। 24 साल डॉक्टर मोहम्मद फवाज ने मीडिया को बताया कि उन्होंने ये काम इंसानियत के फ़रोग के लिए अंजाम दिया, क्योंकि दीन इस्लाम ने इंसानियत और खिदमत खल्क को सबसे अफजल अमल करार दिया है। जेईई उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत देते हुए हुकूमत ने एनआईटी और मरकजी इमदादी तकनीकी इदारों में दाखिलों के लिए अहलियत की शराइत में कोविड-19 की सूरत हाल की वजह से नरमी देने का ऐलान किया है। वजीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल ने बताया कि उम्मीदवार जो जेईई मेंस 2020 इम्तिहान को क्वालिफाई कर चुके हैं, इन्हें 12वीं जमात के इम्तिहान में कामयाबी का सर्टिफिकेट हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिलसिलेवार ट्वीट्स में पोखरियाल ने बताया कि नशिस्तें मख्तस करने वाले मरकजी बोर्ड ने फैसला किया है कि एनआईटीज़ और दीगर मरकजी इमदादी तकनीकी इदारों में मौजूद सूरत हाल के पेश नज़र दाखिलों की शराइत में नरमी दी जाएगी। इन इदारों में दाखिले के लिए अभी तक 12वीं जमात के इम्तिहान में 75% निशानात हासिल करना लाजमी था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सादा ज़िंदगी गुजारना बेहतर ज़िंदगी के लिए लाजमी है और ये सबके लिए दुरुस्त है, जिनमें गरीब भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में पानी की सरबराही के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इन्हीं तरीकों पर गुज़िश्ता 6 साल से अमल आवरी की जा रही है। शुमाल मशरक़ी इलाके में ज़राए हमल व नकल व सफरी राब्ते पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे शुमाल मशरक़ को मजबूत बनाने से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारा शुमाल मशरक़ एक तरह से मशरक़ी एशिया के साथ हमारी तारीख़ी सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात और तिजारत, सफ़र व सयाहत के मुस्तक़बिल के दाखिले का दरवाज़ा है। मौलिक वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमतें अवाम में लगातार बेदारी पैदा करने का काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बदएहतियाती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हैरानी तो इस बात पर है कि मास्क लगाना भी जैसे लोगों के लिए इंतहाई दुश्वार हो गया है। मास्क लगाने से मुतालिक लोगों पर सख्ती करने के लिए किसी रियासत में 500 रुपये का जुर्माना आयद किया जा रहा है तो किसी रियासत में 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया जा रहा है। लेकिन झारखंड हुकूमत ने इस सिलसिले में बड़ा कदम उठाते हुए जुर्माने की रकम 1 लाख मुकर्रर कर दी है। दरअसल झारखंड में कोरोना के मामले तेजी से फैलने लगे हैं और हेमंत सोरेन हुकूमत ने लोगों पर सख्ती करने का फैसला किया है ताकि वो किसी तरह की लापरवाही ना करें। झारखंड काबीना ने गुज़िश्ता रोज वबाई अमराज ऑर्डिनेंस 2020 को पास कर दिया है, जिसके मुताबिक मास्क ना पहनने पर 1 लाख जुर्माना और 2 साल जेल की सजा हो सकती है। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने उनकी रिपोर्ट नेगेटिव साबित होने की इत्तलात को गलत बताया और कहा कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं। 77 साल बॉलीवुड अदाकार अपने फर्जंद अभिषेक बच्चन के साथ नानावती हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। सोशल मीडिया पर यह खबरें गश्त कर रही थी कि अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट मंफी साबित हुई। ट्विटर पर एक टीवी चैनल की रिपोर्ट का वीडियो क्लिप जारी करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि यह खबर बिल्कुल गलत है, फर्जी है और बिल्कुल झूठ पर मबनी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी है। यहाँ कोरोना मरीजों की तादाद 13 लाख के करीब पहुंच गई है। मुल्क में इस पैंडेमिक से मरने वालों की तादाद 30,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं अमेरिका में कोरोना मामलों की तादाद 40 लाख को पार कर चुकी है और करीब 1.5 लाख लोगों की मौत वाक़ई हुई है। दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 1,54,00,000 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 50,000 नए केसेस सामने आए हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का कामयाब सर्जरी के बाद पित्ता निकाल दिया गया। शाही दीवान ने आज एक बयान में बताया कि खादिम हरम शरीफीन की लेप्रोस्कोपी के जरिए सर्जरी की गई। सर्जरी के इस अमल में बिलउमूम छोटे कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं और ये अमल मरीज के लिए कोई ज़्यादा तकलीफदा नहीं होता। एसपीए के मुताबिक खादिम हरम शरीफीन अब सेहतयाबी तक रियाज में वाक़ शाह फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में ही रहेंगे। इन्हें मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए गुज़िश्ता पीर को इस अस्पताल में दाखिल किया गया था और डॉक्टरों ने इनके मुकम्मल टेस्टों के बाद इनके पित्ते की सर्जरी का फैसला किया था। शाही बयान के मुताबिक शाह सलमान ने अरब और मुस्लिम दुनिया के इन तमाम रहनुमाओं और कायदीन का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इनकी फ़ोन पर खैरियत दरियाफ्त की और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। हज के दौरान 3,500 सफाई कारकुन मस्जिद हरम को मुअत्तर, सैनिटाइज और साफ सुथरा रखने का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। सऊदी खबर रसां इदारे एसपीए के मुताबिक हरम मक्की के
शोबे इंतजामी उमूर के सेक्रेटरी मोहम्मद अल जाबरी ने बताया कि मस्जिद हरम की इंतजामिया हरम शरीफ के कालीनों को साफ करने और इन्हें कोरोना वायरस से महफूज बनाने के लिए एक इदारा कायम किया है। मस्जिद हरम इसके खारिजी सहनों इदारों की रोज़ाना 10 मरतबा सफाई की जा रही है। 3500 कारकुन जिनमें ख्वातीन भी शामिल हैं आला दर्जे की खुशबू से मस्जिद हरम को मुअत्तर कर रहे हैं। ये खुशबू ख़ास तौर पर हरम शरीफ के लिए हासिल की गई है। अलावाज़ी अव्वल दर्जे के सैनिटाइज़र और बहुत उम्दा किस्म का जरासीम कुश अद्वियात भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मस्जिद आया सूफिया को 86 साल बाद 24 जुलाई को यानी आज तिलावत कलाम पाक के साथ इबादत के लिए खोला गया है। कोरोना वबा के खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दामात के दायरेकार में महदूद तादाद में लोगों को मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त है। 24 जुलाई को इबादत के लिए खोली गई आया सूफिया मस्जिद के इर्द गिर्द हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। मस्जिद के सामने वाले हिस्से में फौलादी रुकावटें खड़ी कर दी गई, जबकि सुल्तान अहमद स्क्वायर को जाने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी गई। पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी और स्कैनिंग के पॉइंट्स कायम कर दिए हैं और मैदान में 17,000 पुलिस एहलकार तैनात है, जबकि चौक में हेल्थ पॉइंट कायम किए जा रहे हैं। 86 साल बाद आया सूफिया मस्जिद में तब्दील हुई है और आज नमाज जुमा अदा की जा रही है। आलम इस्लाम में जश्न का माहौल है, सख्त तरीन हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट में आज एक दरख्वास्त की समाअत की गई, जिसमें उस्मानिया हॉस्पिटल की मौजूदा इमारत के इंहदाम और नई इमारत की तामीर पर अदालत से मुदाखलत की अपील की गई। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से कहा कि खदीम इमारत के इंहदाम के मसले पर मुख्तलिफ राय जाहिर की जा रही है। बाज़ गोशे मुनहदिम करने और बाज़ दूसरे हेरिटेज इमारत की हैसियत से तहफ़्फ़ुज़ की मांग कर रहे हैं। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि आया उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत तारीखी हेरिटेज है या नहीं है। हुकूमत ने बताया कि हॉस्पिटल की मरम्मत के लिए साबिक़ में हुकूमत ने 6 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। सरकारी वकील ने कहा कि मरम्मत के कामों के बारे में मालूमात हासिल करके अदालत को वाकिफ कराएंगे। इस मुकदमे की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी की गई है। ईद उल अजहा के मौके पर गाय और ऊंट को ज़ुबा करने की इजाज़त नहीं होगी और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनान ने बताई। उन्होंने ईद उल अजहा के पेश नज़र राब्ता इजलास मुनक़िद किया। सेहत व सफाई और ईद के पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इजलास में बल्दिया के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने कुर्बानी के जानवरों के फजला की सफाई और आसान अंदाज में मुंतकली के लिए बल्दी अमले को चौकस रहने और फौरी इक़दामात पर जोर दिया। साथ ही पुलिस हुक्काम को पाबंद किया कि वो शहर को आने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी करें, चेक पोस्ट का जायजा लेते रहें। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की कि वो पुलिस और सरकारी मिशनरी से ताउन करें। तेलंगाना के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। इन हालात में आइंदा 4 से 5 हफ्तों में सूरत हाल संगीन रहेगी। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने आज एक बयान जारी करते हुए कोरोना की संगीन सूरत हाल से अवाम को वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना का फैलाव कम्युनिटी ट्रांसमिशन तक पहुंच चुका है। हैदराबाद में केसेस की तादाद किसी कदर कम हुई है, लेकिन दीगर इलाकों में वायरस के फैलाव में इजाफा हो रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सख्त चौकसी और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल इस कदर संगीन है कि साबिक़ में कभी नहीं रही। इमारत शरीयत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुतारी, मौलाना सैयद मोहम्मद सिद्दीकी हुसैनी कादरी, मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी और दीगर ने अपने एक मुश्तरका मज़म्मती बयान में कहा कि गुज़िश्ता दिनों लॉकडाउन के दौरान तमाम मुसलमानों ने उलमाए किराम की हिदायत और हुकूमत की आयत करदा पाबंदियों के साथ अपने घरों में 5 वक्त की नमाजें अदा की, ताकि कोविड-19 के मज़र असरात से बचा जा सके। अब जबकि हुकूमत की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन उठा लिया गया है, तो अवामुन्नास बिला रोक टोक अपनी मसरूफियात जारी रखे हुए हैं और मुसलमान मसाजिद में 5 वक्त समाजी फासले के साथ सिर्फ फ़र्ज नमाज अदा कर रहे हैं और सुन्नत व नवाफिल तो घरों में ही अदा की जा रही है। नेज़ नमाज जुमा के मौके पर भी मसाजिद में इन्हीं हिदायत को मलहूज़ रखा जा रहा है। मुसलमानों की इन काबिल सताइश पाबंदियों के बावजूद तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ आमा में हुकूमत की तरफ से नमाज जुमा के मौके पर पुलिस नमाजियों को इन मसाजिद में जाने से रोक रही है। इन दोनों मसाजिद की किशादगी भी ज़रूरी है। यहाँ तक कि पुलिस ने गुज़िश्ता जुमे को नमाज के मौके पर मस्जिद चौक के दरवाज़ों को बंद कर दिया था। इससे अज़ान आम की शर्त साख्त हो गई और नमाजियों को दोबारा नमाज ज़ोहर अदा करना पड़ा।